So our discussion has finally reached onto VBA and macros. Now this is one thing I feel you have been waiting for, and in fact this is a very interesting phase that we are going to a very interesting chapter that we are going to discuss right now. So as far as this VBA, the concept of VBA and macros is concerned, it is important to know about VBA as well as macros because it will make your on the job life easier. But you do not need to be an expert for that. You do not need to dive into too much because, as I said, that this is a big universe and to explore everything out of it is going to take a lot more time. So how are we going to discuss it and how are we going to use it? We are going to learn it in a way so that we can use it in our official life, in your day-to-day regular job work, as well as far as financial modeling task is concerned. So what is VBA and what is macros? Simple terms में अगर बोला जाए, VBA is a platform and macros is a way or a method जिससे हम Microsoft Excel में VBA का यूसेज लेते हैं, VBA का हम काम लेते हैं in Microsoft Excel. So the coding part is involved in VBA and recording macros is a matter of just a few clicks. So what exactly we do with VBA and macros? So Microsoft Excel में जो प्राइमरी काम है आप macros के या VBA की मदद से करते हैं, that is automation. कोई काम आप मैन्युअली करते हैं उसको हम कैसे ऑटोमेट करें, जो काम आपको यूजुअली बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर्स, दीज टूल्स. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न. सो हाउ डू वी डू दैट? इसका फ्रेमवर्क एक समझा दूं आपको, ये कैसे काम करता है. अब जो भी काम आप यूजुअली करते हैं ऑन योर एक्सेल, you can record all the steps that you manually perform in Excel. तो वो सभी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं with the help of macros. ओके, एंड जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सभी स्टेप्स आपके रिकॉर्ड करने का टूल तो मैक्रो है, बट वो सभी चीज़ें स्टोर कहाँ हो रही है, वो सभी चीज़ें जा रही हैं आपकी VBA के प्लेटफॉर्म पर. तो आपने मैक्रोस के यूज़ करके रिकॉर्ड किया, बट वो चीज़ें स्टोर हुई हैं आपके VBA प्लेटफॉर्म पर. तो अगर आपको उससे चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स रिकॉर्ड हुए तो उसके लिए आपको VBA पर जाना पड़ेगा. ओके, एंड अगर आप उन स्टेप्स को चेंज करना चाहते हैं, कोई स्टेप आपने गलती से कर दिया या कोई स्टेप आप और ऐड करना चाहते हैं, सो दैट हैज़ टू बी डन ऑन दी VBA एडिटर. ओके, so how can we access VBA editor? That is the keyboard combination here, Alt plus F11. And उसके लिए we also have this developer tab here. हमने इनिशियल फर्स्ट क्लास में इसको कैसे लेकर आना हमने डिस्कस किया था, बट इन केस यू डू नॉट हैव दिस ऑन योर स्क्रीन ऑलरेडी, then let me show you. You need to go to the file tab and go to options. Come here under the customize ribbon. Here you will find this option developer. तो अगर ये आपका अनचेक्ड है आप इसको चेक कर दीजिए and then click on OK. So you will get this developer tab on your ribbon. So under this developer tab we have both these options, Visual Basic and macros. Now what exactly we can do with macros? So we have this following usage that we are going to discuss. वैसे इसका आप क्या काम ले सकते हैं, that truly depends upon the work you do. जो भी सिनारियो है आपके सामने, that will vary upon case to case basis and it is very difficult to limit the usage of macros. So उसको एग्जॉस्टिवली मेंशन करना कि मैक्रोस का सिर्फ ये यूसेज है, दैट इज नॉट फिजिबल. सो लेट अस चेक आउट सम यूसेज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्रोस. सो द फर्स्ट वन इज यूज फॉर क्रिएटिंग शॉर्टकट कीज. We have already learned about various keyboard combinations to perform various tasks, and now getting into one step further, you can create your own keyboard combinations. So that is why this is said that जब तक आपने VBA and macros को explore नहीं किया तब तक आपने अपनी Excel जर्नी में you have not leveled up, you have not geared up to another level. Now this is the true form of advanced Microsoft Excel.
Okay, so and this is the reason because now you are into the developer mode. अब आप खुद चीज़ों को डेवलप करेंगे. You are not relying on the inbuilt features of Microsoft Excel. So that ability is granted to us, is offered to us with the help of VBA. So next usage is repeating of tasks, as I have been saying already. You can create tables, or you can do formatting, and you can do whatever steps that you can perform on a worksheet, on a Microsoft Excel worksheet. All that can be repeated. Okay. The third one is avoiding circular reference. In the introduction video, I have said that this is one common phenomena that occurs when you prepare financial models. तो circular reference को हम कैसे avoid कर सकते हैं using macros, that we are going to check out. And actually this third point is going to be the most relevant for us, because जब हम models को construct करने जाएंगे तो यही चीज़ है जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी. First two is for your you can say your regular work job. Now when you create a macro, then this one requirement has to be met कि आप एक normal worksheet पर macros को run नहीं कर सकते. Now this is a .xlsx worksheet. ठीक है, इस पे अगर मैं कोई macro record करता हूँ, so that is not going to function on this sheet until and unless आप इस worksheet को save as करें as a macro enabled workbook. So how can you do that? For that you need to go to file and save as, and जब आप save as पर जाएंगे, choose the location where you want to save it, and there you will have this option here, save as type. तो यहाँ देखेंगे Excel workbook पर you have this Excel macro enabled workbook. तो जब आप इसको as a XLSM file save करेंगे, only in that case your macros are going to work properly. Okay, so in that case आपका जो format है, आपका जो extension है, वो change होकर XLSX से change होकर that will become .xlsm. And the caution before we get into the exercise, how to create macros and how to build, so this is the caution word for you, that you cannot undo what you have performed using a macro. तो एक बार जो काम अपने मैक्रो से कर लिया वो फिर हो चुका है, अब वो undo नहीं हो सकता. ठीक है, तो you have to be very careful when you are playing around with macros. Okay. And lastly, I have not shown you how this what this keyboard combination is going to bring up. So ये VBA editor कैसा दिखता है उसको एटलीस्ट देख लेते हैं. So you have to press Alt function key and F11. Okay. And this is how VBA editor looks like. So अगर आपके यहाँ पर blank आ रहा है, if this screen is grayed out, अगर यहाँ पे white screen की जगह अगर एक grey screen है, so in that case आपका यहाँ पर कोई module inserted नहीं है. So how can you do that? So for that let me first close this one down. अगर आपका स्क्रीन इस तरह से आ रहा है, सो हाउ व्हाट यू कैन डू, आप जिस शीट पर मैक्रो बनाना चाह रहे हैं, जिस शीट पर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस शीट को आप सिलेक्ट राइट क्लिक करेंगे, एंड राइट क्लिक करने के बाद यू विल सी हियर अंडर द इंसर्ट यू विल हैव दिस मॉड्यूल ऑप्शन. तो आप इस मॉड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट दैट स्क्रीन टू वर्क अपॉन, एंड और यू कैन गो टू दिस इंसर्ट बॉक्स, this insert menu here. यहाँ insert पर अगर आप क्लिक करेंगे, there also will find this option to insert a module. So when you click on this module, you get this workspace to do your coding stuff. Okay. तो अब अगर VBA की बात करते हैं, तो जो सबसे बेसिक चीज़ आप कहीं पर भी VBA को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं पर भी आप VBA को अगर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ जो कोई भी आपको बताएगा, दैट इज़ हाउ टू मेक यूज़ ऑफ मैसेज बॉक्स. अब एक्सेल में जो भी डायलॉग बॉक्सेस अपीयर होते हैं आपके सामने, आप कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो आपको एक्सेल पूछता है हाउ डू यू वांट टू सेव इट, वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट, येस नो कैंसिल. सो ऑल दैट स्टफ, वो जो भी बॉक्सेस आपके सामने आते हैं उसको कैसे क्रिएट करना है, दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग व्हेन यू discuss about VBA. Although this thing is not relevant for us as far as our financial modeling part is concerned, but just to give you a feel about how VBA can work, so let me get into this and show you how you can display a message on the message box. Okay. So before writing anything here, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक subject का नाम देना होता है. You have to mention what you are going to code about, what you are going to write about. Okay. So सबसे पहले आपको यहाँ पे sub लिखना है, sub, that is the subject,
and then give a space. Now write the heading, what you want to write about. So let's say we want to give a welcome message. So I can write welcome here and then press enter. Now to display a message box, you have to type message box, that is MSGBOX. Okay, after writing message box, give a space, and now you have to write what is the message that you want to show, and that has to be in inverted commas. अच्छा, माइंड यू दैट ऊपर जो हमने वेलकम लिखा था उसको आप एक 2 लेटर वर्ड भी लिख सकते हैं, बट दैट हैज़ टू बी विदाउट स्पेसेस. तो अगर मैं वेलकम के बाद भी कुछ अगर लिखना चाहूँ, सो लेट्स से वेलकम फोक्स, आई वांट टू राइट वेलकम फोक्स, बट दिस यू कैनॉट यूज अ स्पेस हियर. आपको यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या यू कैन यूज इट विदाउट स्पेस, बट you should not give a space there. And now we are going to write the message. So the message box is, let's say, hi, my name is KD. So this is the message that I want to display. Okay. And now I want to run this code. I want to see how this is going to look like. So उसके लिए आपको क्या करना है, you will see this play button here that is saying run. तो आप या तो इस run पर क्लिक करें या फिर आप F5 प्रेस कर सकते हैं. So if I click on this run button here, you will see that Excel gives this message, hi, my name is KD. So this was one simple application how you can display a message box on your Microsoft Excel. And as I already said that इसका कोई खास यूसेज नहीं है हमारे लिए. So we are going to discuss the exercise now for that. So अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं. We are not using it now. And now let us go to the exercise now. So this is our macro and VBA exercise workbook. We are on the first sheet, that is the formatting sheet, and we have this data set here. तो यहाँ पे हमारे पास एक sales data given है जिसमें कुछ dates mentioned है, and we have the sales amount for various products, product 1, 2, 3 and 4. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे एंड फिर उसको हम मैक्रो की मदद से उस टास्क को हम मैनुअली नहीं करके हम उसे ऑटोमेटिकली करने की कोशिश करेंगे. सो हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो? सो यू कैन रिकॉर्ड अ मैक्रो आइदर गोइंग अंडर द व्यू टैब. व्यू टैब में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रोस का. यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे, यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिकॉर्ड मैक्रो हियर. ठीक है. As you can also see that the keyboard combination is Alt plus F8, so you can use that also. दूसरा तरीका है, आप यहाँ नीचे देखेंगे स्टेटस बार पर this button here, macros. तो अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे then also it will start recording macro. तो if I click here then it will give you the option to record macro. Another way that you can record a macro is going to the developer tab and by clicking on this record macro here. ठीक है. So I have showed you 3 ways and 1 keyboard combination. तो चलिए अब हम किसी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड वहाँ पर हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे उन सभी स्टेप्स को हम क्या करना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सो दैट वो स्टेप्स हमें दोबारा खुद को मैनुअली परफॉर्म ना करना पड़े. एंड एक्सेल शुड बी एबल टू डू दैट, रिपीट दैट अगेन फॉर अस. सो फॉर दैट you have to click on this record macro here. So when you click here it asks you for the macro name. तो macro name हम दे देते हैं because we are conducting some formatting. Let us give the name for format. Shortcut की आप यहाँ पे एक shortcut की specify कर सकते हैं. Let us skip it for now. इसको next step में करेंगे. Store macro in. Where do you want to store this macro? In a new workbook, in a personal macro workbook, in this workbook. We want to keep it this workbook. You can, if you want to give a description, तो आप यहाँ description दे सकते हैं कि आप exactly क्या steps perform करने वाले हैं. So we are going to apply number format. Yes. तो हम यहाँ लिख देते हैं number format. Done and click on OK. तो अब रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो चुका है. तो अब आप जो भी एक्टिविटी करेंगे एक्सेल शीट पर, बी वेरी केयरफुल. यहाँ देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मैक्रो की जगह स्टॉप रिकॉर्डिंग शो कर रहा है. एंड यहाँ नीचे भी देखेंगे दिस ऑप्शन हैज टर्न इनटू अ स्टॉप बटन. तो नाउ अब आप जो भी अब आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड. सो बी केयरफुल वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेस.
लेट अस ओपन द फॉर्मेट सेल्स बॉक्स. उसके लिए हम Ctrl+1 को प्रेस करेंगे. सो वी हैव दिस फॉर्मेट सेल्स बॉक्स हियर. यहाँ से लेट्स से हम नंबर फॉर्मेटिंग ही रखना चाहते हैं. नंबर फॉर्मेटिंग में वी कैन यूज़ दी 1000 सेपरेटर. डेसिमल प्लेसेस को हम 0 कर देते हैं. एंड वी वांट टू मेक द नंबर्स नेगेटिव. वी वांट टू हाईलाइट द नंबर्स रेड इफ इट इज़ अ नेगेटिव नंबर. ओके, सो ये हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके. वी आर डन विद द फॉर्मेटिंग. अब आप इसको स्टॉप कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट सेल में हम टेस्ट करते हैं कि वो जो स्टेप्स हमने अभी परफॉर्म किया था वेदर दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड और नॉट. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैक्रोस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी दैट देयर इज दिस फॉर्मेट हियर. ये नीचे वाला कौन सा ऑप्शन है जो हमने अभी मैसेज बॉक्स पर नाम डिस्प्ले किया था. सो दैट इज दिस वन. एंड द सेकेंड इज दिस फॉर्मेट जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है. तो इसको आप एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रन पर क्लिक करेंगे. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन रन, मेक श्योर आप ऑलरेडी वो सेल सिलेक्टेड है जिस पर आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं. सो दैट सेल इज सिलेक्टेड. अब मैं यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा. So when I click on run, this number formatting gets applied. Now let us try on a negative number. तो हम इस नंबर पे ट्राई करते हैं. Click on this macros button here again, and now this time let's say हम एक कीबोर्ड कॉम्बिनेशन इसको स्पेसिफाई कर देते हैं. We do not want to repeat it this way again and again. तो इस बार हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पर आएंगे. यहाँ नीचे you can press Alt O, and यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की स्पेसिफाई कर देंगे. So what can be the shortcut key? Usually control के साथ जो alphabets हैं most of them are already taken. So try to make a combination with Control Shift और Alt Shift. Okay. तो आप यहाँ पे let's say Control के साथ Shift प्रेस करेंगे और I can let's say keep it F. Control Shift F. तो आपको Shift और F प्रेस करना. When you press Shift and F, तो अब आपका कॉम्बिनेशन हो गया Control Shift F. F will stand for formatting, तो it will be easier for us to remember. And now click on OK. And let us cancel it. And अब हम शॉर्टकट की से इस फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे. So Control Shift F प्रेस कीजिए and we can see that for this formatting has been applied on this cell. Okay. तो अब हम ये सेम फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट पर अप्लाई कर देते हैं. कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, एंड अब प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एफ, एंड वी सी दैट द फॉर्मेटिंग हैज बीन अप्लाइड ऑन द एंटायर डेटा सेट. नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड में क्या स्टेप्स रिकॉर्ड हुए थे उसको चेक करने के लिए वी नीड टू गो टू द VB एडिटर. तो उसके लिए कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है Alt F11, या फिर आप यहाँ इस विजुअल बेसिक पर क्लिक कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे नीचे एंड क्लिक ऑन दिस मॉड्यूल 1 हियर. सो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है बाई चांस फॉर एनी रीजन, इफ यू आर नॉट एबल टू लोकेट दिस, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप वापस से मैक्रोस को ओपन कीजिए एंड यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, एंड यहाँ से आप एडिट पर क्लिक करेंगे. सो अगर आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली वही मैक्रो का जो कोडिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. यहाँ पर जब हमने स्टेप्स को रिकॉर्ड किया था तो एक्सेल ने इसको VBA में इस तरह से रिकॉर्ड किया. जो स्टेप्स है वो यहाँ VBA पर इस तरह से कोडिंग उसका हुआ है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है फॉर्मेट. जो हमने हमारे मैक्रो का नाम दिया था उसको यहाँ पर VBA में सब्जेक्ट बना दिया गया है. उसके बाद यू कैन सी ये हो गया आपके मैक्रो का टाइटल. ये हो गया जो हमने कमेंट वहाँ पर इंसर्ट किया था. वी इंसर्टेड दैट वी गिव द डिस्क्रिप्शन दैट वी वांट टू अप्लाई नंबर फॉर्मेट. सो दैट हैज़ बीन गिवन हियर. एंड उसके बाद वी हैव दिस मेन कोडिंग हियर. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहले हो रहा है सिलेक्शन. इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे कि जिस भी सेल को आपने सिलेक्ट कर रखा है,
इट इज़ गोइंग टू रेफर टू दैट सेल। अब चाहे वो एक सिंगल सेल का सिलेक्शन हो या एक पूरे रेंज का सिलेक्शन हो। ओके, सेकेंड पार्ट पर्टेन्स टू नंबर फॉर्मेट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर कंडक्टिंग। हमने क्या किया था, हमने फॉर्मेट सेल्स ओपन करके नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया था। यस, सो दिस इज द नंबर फॉर्मेट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट एक्चुअली। सो दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, हैश 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 कॉमा डबल हैश जीरो। So this we have already learnt in the custom cell formats that this portion is going to give us the 1000 separator, right? तो first part में that is the positive element. So positive number के लिए it is showing the number format and after a semicolon it is showing सबसे पहले the red color and then a negative sign and then the 1000 separator code. ठीक है? So I hope you are able to read this code because this is what we have already learnt in the custom cell formats. So this format is getting applied on all the cell formats. Now let's say we want कि हमारे यहाँ शीट इस डेटा सेट में जितने भी जीरोज हैं उन सभी को हम एक डैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं. वी डू नॉट वांट टू शो जीरोज. सो उसके लिए आप ऑल टैब से इस विंडो पर वापस आ जाएंगे एंड नाउ let us extend this number format a little further. We know कि custom cell format का पैटर्न कैसे काम करते हैं. सबसे पहला पार्ट इज पॉजिटिव, उसके बाद सेमीकोलन से द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स एंड दैट इज फॉर द नेगेटिव. तो अब हमें थर्ड पार्ट पर जाने के लिए हमें एक और सेमीकोलन देना पड़ेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्पेस दीजिए, उसके बाद एक सेमीकोलन दीजिए, देन वन स्पेस अगेन एंड अब यहाँ पर एक डैश दे दीजिए. So I gave a dash. So the number, the symbol just behind the zero. Okay, on the number line आपके जीरो के जस्ट साइड में जो डैश है आप वो दे दीजिए एंड प्रेस एंटर. तो अब हमारा जो नंबर फॉर्मेट है वो एक्सटेंड हो चुका है एंड अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए. नाउ लेट अस रिपीट दैट मैक्रो अगेन. ठीक है, तो उस मैक्रो को डेटा सेट सिलेक्ट करने के बाद इस मैक्रो को वापस रिपीट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ से एंड व्हाट डू यू सी दैट जितने भी जीरोस थे वो सभी डैश में कन्वर्ट हो चुके हैं. ओके, सो हमने क्या देखा कि पहले हमने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया, उस मैक्रो के स्टेप्स कैसे रिकॉर्ड हुए हमने उसको चेक किया ऑन द वीबी एडिटर. देन वी एडिटेड दिस formatting on the VB editor itself and then we again applied the changed formatting on the data set. Okay, so this is a very simple usage of using the macro. Okay, and अब इसको हम कैसे और further use कर सकते हैं. देखिए जब हम financial models पर काम करते हैं, so you will find, let me show you what exactly you are going to see there. सो ऑन दी फाइनेंशियल मॉडल्स आपको फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से मिलेगी फॉर एजम्पशंस. सो लेट मी शो यू हियर. अब जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल पर मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है. देयर इज दिस इटैलिक्स हियर, देन यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाइड हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू सी, लेट मी शो यू. सो इस सेल में यू कैन सी दैट देयर इज नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर इटैलिक्स किया हुआ है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, देन दिस बॉर्डर हैज़ बीन अप्लाइड. फिर बॉर्डर्स में भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग है, दिस डॉटेड फॉर्मेटिंग इज देयर. सो मल्टीपल स्टेप्स हैव बीन यूज्ड टू अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग हियर. एंड अगर ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे मल्टीपल सेल्स में चाहिए तो आई कैन यूज दिस मैक्रो. नाउ यू कैन गिव दिस आर्गूमेंट कि ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम हम पेस्ट स्पेशल से भी तो कर सकते हैं. हम पेस्ट स्पेशल से फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे. सो इन दैट केस लेट मी शो यू व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम. अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और अगर मैं इस सेल पर इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ ऑल्ट कंट्रोल वी एंड अगर मैं यहाँ फॉर्मेट्स अप्लाई करूँ एंड अगर मैं ओके करूँ, सो देन व्हाट यू विल सी दैट ऑल्दो यहाँ पर फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो गया बट मेरा जो
जो मेरा नंबर फॉर्मेट था वो भी चेंज हो गया. सो परसेंटेज फॉर्मेटिंग, जो वहाँ पे परसेंटेज था, अब यहाँ पे अब यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई हो गया, तो हमें वो तो नहीं करना था, राइट. सो दैट प्रॉब्लम कैन कम अप विद दी पेज स्पेशल. सो इस केस में अप्लाइंग द यूजिंग अ मैक्रो एंड उसको एक कस्टम आप एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, एंड वो शॉर्टकट की से अगर आप हर जगह पर ये फॉर्मेटिंग यूज करेंगे देन दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल. So this is how you can make use of macros for formatting in your financial models. Now let us come to the next sheet. Now we need to discuss about absolute reference, and इसके बाद we will discuss about relative reference. Okay, so to learn about what absolute reference is, let us now again start recording a macro. So click करेंगे record macro पर, and इसको नाम देते हैं लेट्स से एब्सोल्यूट नाम दे देते हैं, ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके. सो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, रैंडमली किसी भी सेल पर जाता हूँ, लेट्स से C2 सेल पर आए, एंड यहाँ पर कुछ एक रैंडमली अब कुछ एक टेक्स्ट टाइप करते हैं. प्रेस एंटर. We are done with the typing. Now you can click on stop recording again. Now अब exactly क्या steps record हुए हैं उसको check करने के लिए let us go to an empty sheet and repeat run that macro. तो click on that macro, select this absolute here and click on run. So what happens on this same C2 cell, because हमने पिछले sheet पर भी C2 cell पर ही कोई text enter किया था, so on this new sheet also एक्सेल ने C2 सेल पर ही इस टेक्स्ट को एंटर किया है. तो ऑलरेडी सो बिफोर रनिंग द मैक्रो माय एक्टिव सेल वाज A1. तो एक्सेल ने क्या किया, पहले C2 पर मूव किया, फिर उस टेक्स्ट को एंटर किया, एंड उसके बाद एंटर प्रेस करके एक्टिव सेल को एक सेल नीचे की तरफ मूव कर दिया. तो इसका आप स्टेप्स को चेक कीजिए. यहाँ एब्सोल्यूट पर, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे, and now you can see that under the absolute macro what is happening. सबसे पहले it is going to the range C2. सबसे पहले उसने C2 सेल को सिलेक्ट किया, देन जो एक्टिव सेल है उस पे इसने टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड देन इट मूव टू रेंज C3. बिकॉज हमने टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया था, सो दैट मूव टू द सेल बिलो द एक्टिव सेल, राइट. सो इसीलिए एक्सेल ने थर्ड स्टेप भी परफॉर्म किया. अगर लेट्स से मैं इस थर्ड स्टेप को डिलीट कर दूं, मैं सिलेक्ट किया और मैंने बैकस्पेस से इसको डिलीट कर दिया. सो अब क्या होगा, लेट मी डिलीट दिस, रन द मैक्रो, एंड दिस टाइम व्हाट डू यू सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तक तो स्टेप सेम है, बट इस बार मेरा जो एक्टिव सेल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, बिकॉज मैंने जो थर्ड स्टेप है उसको डिलीट कर दिया था. ओके, so this is how you can modify the steps that have been performed that have been recorded in your macro. तो अब इस absolute reference का मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है मैक्रो में, जिस सेल पर आपने जो काम किया है वही सेल पर दोबारा एक्सेल उस काम को रिपीट करेगा. दैट इज द सेल हैज बीन एब्सोल्युटली रेफरेंस्ड. पर्टिकुलरली उस सेल को एक्सेल ने क्या किया, यहाँ कोड पर देखेंगे, पर्टिकुलरली इस सेल को एक्सेल ने मार्क कर लिया कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो इसी सेल पर जाने के बाद रिपीट होगा. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो अब इसका ऑल्टरनेट केस क्या हो सकता है, दैट विल बी रिलेटिव रेफरेंस. सो नाउ लेट अस चेक आउट व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस. सो लेट अस परफॉर्म द सेम टास्क अगेन. इस बार हम वापस से सेम टास्क करने वाले हैं, बट सिर्फ एक डिफरेंस क्या रहेगा कि इस बार बिफोर रिकॉर्डिंग द मैक्रो आई विल यूज रिलेटिव रेफरेंसेस. ओके, तो फर्स्ट क्लिक ऑन दिस वन and then go to clicking on record macro, and now let us give the name as relative. Click on OK. Recording has started. Again the same steps, one step down,
2 steps to the right, and what was our text? Microsoft Excel. Pressing enter, and now stop recording. ठीक है, I also stop this use relative references. ठीक है, so I have stopped both. So our macro has been recorded. Now let us see what change has been made. तो इसको रन करेंगे मैक्रो को. क्लिक ऑन मैक्रोस, रिलेटिव को सिलेक्ट कीजिए एंड नाउ रन दी मैक्रो. व्हेन आई क्लिक ऑन रन, व्हाट हैपेंस? इस बार एक्सेल ने C2 सेल पर जाकर दोबारा टेक्स्ट को एंटर नहीं किया. इस बार एक्सेल ने जहां से हमने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से एक्सेल ने उन स्टेप्स को रन किया. तो माय एक्टिव सेल वाज दिस वन, राइट. तो यहां से पहले एक्सेल ने एक स्टेप नीचे लिया, 1 रो टू द डाउन. उसके बाद 2 सेल्स वो राइट पर आया, फिर उसने उस टेक्स्ट को एंटर किया एंड फिर एक सेल नीचे चला गया. यस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ओरिजिनली डन. पहले जब हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था तब भी हमने यही किया था. आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस A1 सेल, देन आई मूव्ड 1 सेल डाउन, then 2 cells to the right. I typed Microsoft Excel and then I pressed enter, which moved my active cell to the below cell. Okay, so चलिए एक बार और ट्राई करते हैं. अगर मैं इस सेल पर आकर वापस से मैक्रो को रन करूं, relative, and when you run it, so this is now going to repeat this way. So relative reference में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज टेकन एज अ रिलेटिव रेफरेंस. दैट इज नॉट एब्सोल्यूट कि पर्टिकुलरली किसी एक सेल पर ही काम होगा. आपने जहां एक्टिव सेल को प्लेस कर दिया वहां से एक्सेल फिर आगे के स्टेप्स को कंडक्ट करेगा. सो दैट इज द डिफरेंस हियर. तो अगर हम इसका कोड चेक करें, अगर आप इसका कोड चेक करेंगे, व्हेन यू गो टू रिलेटिव एंड क्लिक ऑन एडिट, यू कैन सी द डिफरेंस हियर. इस बार एक्सेल ने क्या कोड किया है? एक्टिव सेल. स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्टिव सेल, कि जहां पर भी जो एक्टिव सेल पहले से प्लेस्ड है उसको एक्सेल कंसीडर करेगा. एंड देन इट इज सेइंग ऑफसेट 1,2. नाउ दिस 1 मीन्स 1 रो टू द डाउन एंड दिस 2 मीन्स दैट 2 कॉलम्स टू द राइट. ठीक है, तो ये एक्सेल के लिखने का तरीका है. 1 का मतलब है रो, दिस कॉमा के पहले वाला पार्ट रो के लिए है, कॉमा के बाद वाला पार्ट कॉलम्स के लिए. एंड दिस 1 and 2 स्पेसिफाइज कि कितना कॉलम या कितना रो को जंप करना है. सो अगर ये 2 पॉजिटिव 2 का मतलब है ऑन द राइट साइड, तो यहाँ पे अगर ये -2 होता तो उसका मतलब होता ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे -1 एंड -2 कर दूं तो इसका मतलब होगा 1 रो टू द अप and 2 columns to the left. So we are going to repeat this again, but let us complete this one. तो मूव करने के बाद जो भी रेंज आया उसको सिलेक्ट करेगा. उसके बाद उस एक्टिव सेल पर इट विल टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड देन इट विल मूव 1 रो टू द डाउन बिकॉज वी हैव प्रेस्ड एंटर राइट ऑन दैट एक्टिव सेल. जहाँ हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा था वहाँ हमने फिर एंटर प्रेस किया था, तो इसीलिए एक्सेल क्या करेगा, एक स्टेप नीचे की तरफ भी मूव करेगा. ओके, तो चलिए अब इसको हम इसको रन करके देखते हैं आफ्टर चेंजिंग दिस कॉम्बिनेशंस. नाउ इसको मिनिमाइज कर दीजिए एंड कहाँ से करें, लेट अस कीप द एक्टिव सेल हियर. सो दिस इज आवर एक्टिव सेल. मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ सो दैट विल बी एबल टू सी आवर एक्टिव सेल. अब यहाँ से हम इस मैक्रो को रन करते हैं. गो टू रिलेटिव एंड नाउ रन दी मैक्रो. So now what has happened? पहले एक्सेल एक रो ऊपर की तरफ गया एंड फिर 2 कॉलम्स लेफ्ट की तरफ गया. Okay, so hope you got the idea how these things work. Alright, so now we have this exercise here on the right side. We are given the sales data for product 2, 1, 2, 3 and 4. But this is very unorganized, right? तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी कॉलम्स को अरेंज करना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द टॉप रो. हमें कॉलम 1 पर प्रोडक्ट 1 की सभी सेल्स को लिस्ट करना है. फिर प्रोडक्ट 2 को हमें कॉलम बी पर प्लेस करना है. सिमिलरली प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4 को हमें कॉलम सी एंड कॉलम डी पर प्लेस करना है. सो दिस अरेंजमेंट वी हैव टू मेक विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैक्रो.
सो फॉर दैट ऑब्वियसली सबसे पहला काम, एक काम तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड एंड कैन बी रिपीटेड बाय द मैक्रो फॉर द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. तो चलिए प्रोडक्ट 1 को हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, जो भी डेटा सेट पे हमें काम करना है हमने उसे सिलेक्ट कर लिया. नाउ वी गो एंड क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो. सो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, इसको एक नाम दे दीजिए, लेट्स से अरेंज सेल्स, अरेंज सेल्स. ओके, click on OK and do not forget to use relative references, that is important in this case. अब जो भी प्रेस करेंगे be careful. So I'm pressing Ctrl and X now. This is what I want to record. उसके साथ अब मुझे लेफ्ट जाना है तो I will use Ctrl left arrow key and I want to go upward, so I will use Ctrl up arrow key. I've reached my destination. Now use Ctrl V. Done with the pasting. Now you can stop recording and also stop this using this use relative references. Done. Now can I use this macro on the second column? Let us check it out. हमने इसको select कर लिया. अभी पहले selection करना ज़रूरी है because ये selection जो है ये हमारे macro में recorded नहीं है. ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड आवर मैक्रो रिकॉर्डिंग फ्रॉम दी कंट्रोल एक्स पार्ट, राइट. हमने जब कट किया तब से हमने मैक्रो स्टार्ट किया था. सो आई विल यूज द मैक्रो नाउ, अरेंज सेल्स एंड नाउ रन इट. OMG, व्हाट हैज हैपेंड? हमने जैसा इमेजिन किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ. एंड व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर वॉज अ मिस्टेक इन आवर कोडिंग. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जब हम डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल लेफ्ट प्रेस कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? When I use Control left, it is going to this column again. फर्स्ट कॉलम पर जो एक कॉलम है उसी पर हमारा एक्टिव सेल पहुंच रहा है एंड उसके बाद हम कंट्रोल अप एरो की प्रेस कर रहे हैं एंड फिर हम वहीं पर उसको पेस्ट कर रहे हैं. सो अगर इस मैक्रो को अगर हम फर्दर रिपीट करते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 3 भी यहाँ से कट होकर इस कॉलम पर आएगा एंड फिर इसी कॉलम पर पेस्ट हो जाएगा. सो दिस डेटा इज गोइंग टू गेट ओवर रिटन अगेन एंड अगेन. So that is the problem with this recording this time, and it was important to show you this error because you will know what problems you can face in the future. So now what I need to do, I need to fix the macro that has been recorded. So let us go to the macro. Our macro was arrange cells and now let us edit it. When I go to edit, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप इज ओके, पहले कट करना है, दैट इज ओके. उसके बाद हम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. उसके बाद हम अपवर्ड जा रहे हैं यूजिंग कंट्रोल अप एंड देन वी आर पेस्टिंग द डेटा. सो पेस्ट करने से पहले अगर हम जस्ट राइट बिफोर पेस्टिंग द डेटा इफ वी स्विच फ्रॉम दैट कॉलम टू द वेरी नेक्स्ट कॉलम, तो हमारा जो डेटा है वो एकदम नेक्स्ट कॉलम पर पेस्ट होगा. एंड इफ वी कैन रिपीट दिस स्टेप going to the right column and then pasting the data, if we can repeat that, then it will solve our problem. Yes. So in the previous macro I was discussing this कि कैसे हम cells and columns move कर सकते हैं on the using this coding in the VBA. So हम एक काम करते हैं, हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करने से पहले यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं. बट इसमें हमें एक चेंज करने की ज़रूरत है, दैट दिस इज गोइंग टू 1 रो टू द अपवर्ड्स. तो ये हमें नहीं करना है, हमें इसे 0 करना है एंड वी वांट कि हम सिर्फ एक कॉलम राइट की तरफ मूव हो. तो उसके लिए हम यहाँ पे +1 रखेंगे. ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन. नाउ लेट अस चेक आउट आवर मैक्रो अगेन. अब इस डेटा पर चेक करते हैं. प्रोडक्ट 3 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन. नाउ लेट अस रिपीट द मैक्रो. So macros में arrange cells and now click on run. When I click on run, this time it is working fine because वो छोटी सी adjustment की एक requirement थी which now has been made. If I again use this on this product 4, now if I go on macros, go to arrange cells and if I click on run, so this is working fine again. Okay, so in this exercise we have not only learned how to use relative reference, we have also seen if there is some mistake in the while recording the macro, then how can we fix it by going to the VBA editor.
All right. Our next exercise is about auto invoicing. Now what are we going to do in this? We have this draft outline of an invoice. एक invoice का एक just एक rough structure सा बनाया हुआ है, ठीक है. So which usually an invoice usually contains these details: invoice number, date, name, address and phone number, and जो भी product उसने खरीदा है उसका rate, quantity, amount. Okay. So this is the minimum basic details that you will find in every invoice. And this on the right hand side you have the details of the product that we are going to deal in. This is the product name and this is the product rate. Now what is the objective of creating this invoice? We will create invoice for the first time, and from the next time we want to automate this process. ठीक है, तो next time से कैसे ये invoice अपने आप बने, but of course 100% automation cannot be done because जो कस्टमर नेम आएगा दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन एवरी केस. उसका एड्रेस फ़ोन नंबर अलग होगा, एंड वो क्या प्रोडक्ट बाई करेगा ये हम पहले से फिट नहीं कर सकते या उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते. ये वो कितनी क्वांटिटी लेगा ये भी ऑटोमेट नहीं कर सकते. बट इसके अलावा इन 3 एरियाज़ के अलावा वी कैन ऑटोमेट एवरीथिंग, एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू अचीव. ओके. सो फर्स्ट टाइम जो हमें इन्वॉइस है वो हम पहले खुद बना लेते हैं. सो द फर्स्ट इज द इन्वॉइस नंबर. गिव एनी रैंडम नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ. डेट के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे टुडे का, बिकॉज इससे हमारी मेहनत बचेगी, हमें बार बार डेट को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. डन. कस्टमर नेम आप कुछ भी डाल लीजिए. लेट्स से मेरे पास तो वॉल्टर वाइट आया था. सो मेरे कस्टमर वॉल्टर वाइट है. उसके बाद कंप्लीट एड्रेस, इनका एड्रेस है आई गेस इलिनॉय. इनका फ़ोन नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा. डन. उसके बाद सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट. सीरियल नंबर जो है इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं. कैसे? इफ़ अब आप सिलेक्ट कीजिए प्रोडक्ट नेम, बिकॉज प्रोडक्ट नेम हमें मैनुअली एंटर करना है. सो अगर आपने वहाँ कुछ लिख रखा है तो यहाँ पर सीरियल नंबर शो होना चाहिए, नहीं लिखा है तो नहीं होना चाहिए. हम ऐसा कुछ कर रहे हैं. तो अगर आपका जो प्रोडक्ट नेम है दैट इज़ एम्प्टी, मतलब आपने कुछ एंटर नहीं किया, सो इट शुड शो एम्प्टी. एंड अगर आपने वहाँ पे कुछ लिखा है तो इट शुड शो 1 एज द सीरियल नंबर. ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया. अब नेक्स्ट सेल में मैं क्या करूँगा, सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा उसमें. तो इस सेम फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर लीजिए. बट अब मैं यहाँ क्या करूँगा, 1 की जगह आई विल यूज़ द अपर सेल +1. तो अभी ऑटोमेटिकली 1 2 3 लेते जाएगा. ओके. उसके बाद प्रोडक्ट नेम. तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम एक काम करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन. यहाँ पे लिस्ट पर जाएंगे. सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? दिस प्रोडक्ट आइटम्स, राइट. तो इनको हमने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके. ये आ गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट. उसके बाद रेट. तो हम रेट यहाँ से रेफर करने के लिए हम वी लुकअप यूज़ कर लेते हैं. वी लुकअप, व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? जो भी यहाँ प्रोडक्ट नेम आएगा, कॉमा, टेबल एरे के लिए इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद F4 से इसको फ्रीज कर दीजिएगा सो दैट वी कैन कॉपी एंड पेस्ट इट फर्दर. कॉलम इंडेक्स नंबर इज गोइंग टू बी 2, द सेकेंड कॉलम इन दिस रेंज, एंड देन कॉमा 0 वी वांट एन एग्जैक्ट मैच. ओके. सो दिस इज आवर फॉर्मूला. अभी यहाँ पर NA शो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट नहीं किया. तो इसको आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इफ़ एरर फार्मूला यूज़ कीजिए. अगर यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला कोई भी एरर शो करे तो it should keep the cell empty. Okay, and now if I press enter it is showing empty. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शो करूँगा तो यहाँ पर रेट अपने आप शो हो जाएगा. ओके. ओके, इसको इस सीरियल नंबर को आप ठीक कर लीजिए. यहाँ पे ये C11 ले रहा है तो इसको आप D11 कर दीजिए. ओके. ठीक है, तो हमारा रेट भी अब ओके है. उसके बाद क्वांटिटी.
तो क्वांटिटी तो देखिए मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, हर कस्टमर अलग अलग क्वांटिटी स्पेसिफाई करेगा। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, रेट मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, ओके। एंड क्योंकि अभी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है सो इट इज़ शोइंग एन एरर। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर भी आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इफ़ दिस E11 सेल, अगर जब भी हम क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे अगर ये एम्प्टी हुआ तो फिर अमाउंट को भी एम्प्टी रखते हैं, एंड अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम क्या चाहते हैं, D11 मल्टीप्लाइड विथ E11, ओके। नाउ क्लोज दिस ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सो अब हमारा पूरा फॉर्मूला जो है स्पेसिफाई हो चुका है। अब हम यहाँ शो करेंगे तो ये दोनों आइटम्स अपने आप आएंगे, एंड यहाँ पे अगर हम कुछ क्वांटिटी लिखेंगे तो अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो अमाउंट भी चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ मेकिंग सेंस नाउ। डेटा को चेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं गैलेक्सी नोट 10 खरीदूँ सो इट इज़ द रेट इज़ ओके, क्वांटिटी इज़ मैनुअली स्पेसिफाइड एंड अमाउंट इज़ ऑल्सो ओके। सो नाउ यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस, ओके। सो इन सभी को तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इन तीनों सेल्स पर, एंड फर्स्ट सेल पर दिस इज ऑलरेडी देयर, ओके। सो नाउ वी हैव द डेटा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने एक इनवॉइस तो बना लिया। अब इसको ऑटोमेट क्या कर सकते हैं हम, सीरियल नंबर एंड रेट के लिए तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एंड ऑल्सो फॉर द अमाउंट। तो ये 3 सेल तो हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी स्पेसिफाई होंगे तो ये तीनों ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोडक्ट के केस में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दिया है, सो दैट इट इज़ मोर ईजियर टू सिलेक्ट अ सेल रेदर देन टाइपिंग इट। तो हमने थोड़ा सा उसको और फास्ट कर दिया है, बट इसको फुली ऑटोमेट नहीं कर सकते बिकॉज कौन सा कस्टमर क्या प्रोडक्ट लेगा वी डू नॉट नो, एंड क्वांटिटी ऑल्सो हैज़ टू बी मैनुअली स्पेसिफाइड। तो ये कॉलम तो मैनुअली आना ही पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा और ऑटोमेट करने का क्या स्कोप है। देखिए, ये 3 सेल्स भी ऑटोमेट नहीं कर सकते बिकॉज ये हर इन्वॉइस के केस में चेंज होगा, बट ये इन्वॉइस नंबर एंड डेट के केस में भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ये ऑटोमेटिकली डेली चेंज होते रहेगा। एंड इन्वॉइस नंबर को हम ऑटोमेट कर सकते हैं बिकॉज ये हमें पता है हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए। नेक्स्ट नंबर 100 के बाद 101 चाहिए, 101, 102 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ हम क्या ऑटोमेट करना चाहेंगे कि जब हम नेक्स्ट इन्वॉइस बनाने जाएं तो जो डेटा मैन्युअली एंटर्ड है वो सभी डिलीट हो जाए, बिकॉज नए इन्वॉइस में हमें ये सेल्स एम्प्टी चाहिए होगा बिकॉज यहाँ पे हमें नया डेटा इनपुट करना है। प्रोडक्ट्स हमें एम्प्टी चाहिए होगा, ये भी हमें नया इनपुट करना है, एंड ऑल्सो फॉर द क्वांटिटी एज वेल। सो ये सभी चीज़ें हमें अब एग्जीक्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ अ मैक्रो, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ द इनवॉइस नंबर। इसको हम कैसे ऑटोमेट करेंगे। सो लेट अस गो टू रिकॉर्ड मैक्रो, क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, इसको एक नाम दे दीजिए, लेट्स से इनवॉइस, क्लिक ऑन ओके। एंड अब इनवॉइस नंबर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप। अगर मैं यहाँ 100 की जगह 101 लिखूँ then will it do the same again? Well, I know this is not going to work, but still let us proceed for once. अभी के लिए हम हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर हमें ये तीनों सेल्स नहीं चाहिए तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं, एंड क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा सेल एम्प्टी हो गया पूरा। एंड इनवॉइस नंबर हमने अभी यहाँ मैन्युअली स्पेसिफाई किया है। लेट अस सी वेदर इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए एंड चलिए अब यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम डेटा डाल के देखते हैं, फिर मैक्रो को रन करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मैक्रो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो ये हमने वापस मैनुअल डेटा एंटर किया, अब हम मैक्रो को रन करते हैं, इनवॉइस। अब इसको रन करके देखते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। यहाँ से हमारा डेटा डिलीट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, बट
दिस इनवॉइस नंबर इज नॉट गेटिंग चेंज्ड। सो इसके लिए हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए मैक्रो को एडिट में चलते हैं, यहाँ इनवॉइस पर आएंगे एंड एडिट पर जाएंगे। सो वी हैव दिस इनवॉइस मैक्रो हियर। इसमें देखिए द फर्स्ट थिंग इज कि जो भी एक्टिव सेल है उसमें ये 101 टाइप कर रहा है एंड दिस हैज़ बीन टाइप्ड मैन्युअली, राइट। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है कि पिछले वैल्यू में वो 1 को ऐड करते चले जाए। अगर ये इसी तरह से रहा तो वो वहाँ पर 101 कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड करना है। बट कीपिंग दिस लाइन अपार्ट, बाकी सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। रेंज का पहले सिलेक्शन हो रहा है, इसको आप चेक कीजिए यहाँ से। इफ यू विल चेक इट फ्रॉम हियर, yes, now if you want to check it from here D5 to D7, so ये रेंज हमारा सिलेक्टेड है। पहले हुआ पहले रेंज का सिलेक्शन हुआ एंड उसके बाद सिलेक्शन का क्लियर कंटेंट्स। सो ये रूल VBA में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हुआ है यूजिंग द मैक्रो। उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है C11 टू C13, उसका सिलेक्शन हो रहा है, फिर क्लियर कंटेंट्स एंड सिमिलरली फॉर E11 टू E13 एज वेल एंड देन कंप्लीट। तो हमें सिर्फ इसको ठीक करना है। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मुझे सेल को सिलेक्ट करना है। तो जैसा नीचे यहाँ कर रखा है, आप इसको एकदम एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आपको रेंज टाइप करना है, स्पेस दीजिए, उसके बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी, लेट मी मैक्सिमाइज इट अगेन। तो पहले मैंने रेंज लिखा, फिर मैंने स्पेस दिया एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद आपको लिखना है जिस सेल को आप रेफर करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल? द सेल इज D3। तो चलिए D3 पर चलते हैं, यहां से लिखेंगे D3। ओके, सो दिस हैज टू बी इन इन्वर्टेड कॉमास। सो ब्रैकेट के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, फिर D3 हमने हमारा सेल मेंशन किया, यूज इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला एंटर करना है। वी वांट टू चेंज द वैल्यू, तो इसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी? हम उस सेल में क्या वैल्यू चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एक स्पेस दीजिए, फिर इक्वल साइन दीजिए एंड फिर वापस से इक्वल दीजिए, वापस से स्पेस दीजिए। अब हम चाहते हैं उस सेल में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है दैट शुड इंक्रीज बाय 1। यस, दैट इज व्हाट वी वांट। तो उसके लिए हमें वापस से उस सेल को वापस रेफर करना पड़ेगा। फिर से रेंज लिखेंगे, स्पेस बार, ओपन द ब्रैकेट, स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास, रेफर टू द सेल अगेन D3, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, फिर डॉट, फिर वैल्यू, मतलब उस सेल में जो वैल्यू है उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेस दीजिए, प्लस दीजिए, स्पेस 1। दिस इज व्हाट वी वांट। अब इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा है रेंज D3 की वैल्यू, उस सेल पर सेल D3 की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट इज ऑलरेडी देयर, व्हाट वैल्यू इज ऑलरेडी देयर इन द D3 cell, that plus 1. So this is the interpretation of this line. Okay. So चलिए चेक करते हैं whether it will work or not. इसको आप मिनिमाइज कर देते हैं एंड चलिए लेट्स से यहाँ पे वापस से कुछ रैंडम टाइप कर लेते हैं बिकॉज इसको भी डिलीट करना है। एंड चलिए इस बार मैक्रो को रन करने के पहले एक बटन बना लेते हैं बिकॉज वी विल बी रिपीटिंग दिस मैक्रो अगेन एंड अगेन, राइट। तो इसके लिए हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो बटन के लिए आप इंसर्ट पे आइए, शेप्स पर आइए। अगर आप विंडोज 19 यूज कर रहे हैं तो आप आइकॉन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट दैट विल नीड इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट माइट ऑल्सो टेक सम टाइम टू लोड।
तो अभी के लिए हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉम्पैटिबल विथ ऑल द वर्जन्स। सो यहाँ से जो भी फिगर आपको पसंद है उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर दीजिए। एंड अब इस शेप को आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यू विल सी दिस ऑप्शन असाइन मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ असाइन मैक्रो पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद हमारा मैक्रो कौन सा है, दिस इनवॉइस वन, राइट। तो इनवॉइस को मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ से क्लिक कर देंगे ओके। तो अब हमारे इस बटन पर अब ये जो हमारा शेप था ये एक बटन बन चुका है, बिकॉज व्हेन आई देखिए जब मैं इस पर माउस क्लिक को होवर कर रहा हूँ, जब मैं माउस को होवर कर रहा हूँ इस बटन के ऊपर, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ हैंड साइन। ओके, सो नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ बटन। अगर मैं अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो इट इज़ गोइंग टू वर्क द सेम वे एज वी वुड हैव रन द मैक्रो। ओके, सो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया, दिस इनवॉइस नंबर चेंज फ्रॉम 101 टू 102। हमारे सेल के एंड हमारा ये एरिया, ये रेंज डिलीट हो गया, ये रेंज डिलीट एंड ये रेंज, एंड हमारा जो इनवॉइस है वो पूरा एम्प्टी है। इनवॉइस नंबर चेंज हो चुका है। सो दिस इज नाउ रेडी फॉर अस टू प्रिपेयर द नेक्स्ट इनवॉइस। यस, सो इसी तरह से अगर मैं इस मैक्रो को फर्दर रन करूंगा तो हमारा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा एंड कंटेंट्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन automate the invoicing process to some extent. I will not say that 100% has been automated because that cannot be done. Quantity and product has to be inserted manually, but rest of the invoice we have automated. All right. Coming to the next part, that is circular reference. How can we deal with circular references using macros? सो उसके लिए पहले ये समझ लेते हैं कि सर्कुलर रेफरेंसिंग है क्या। ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन हियर, दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आप आई गेस हायर सेकेंडरी लेवल है, आप उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। सो कॉमर्स स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू रिलेट मोर टू दिस। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, दैट वी आर गिवन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन दैट इज बिफोर मैनेजर्स कमीशन। एंड मैनेजर्स की कमीशन हमेशा यूजुअली किस पर डिपेंड करती है, ऑन द प्रॉफिट दैट द फर्म इज मेकिंग। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फर्म को उतना ज़्यादा कमीशन इस मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, द मैनेजर्स कमीशन विच इज 2% इन दिस केस इज डिपेंडेंट नॉट ऑन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन बट what the firm is earning after deducting this commission. That is, ये जो 2% है, this will not be calculated on the profit before commission. ये इस 300 पर calculate नहीं करना है, ये हमें calculate करना है on the resulting figure, जो ये मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उससे हमें मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना है. एंड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे आएगा? सिंपली प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस दी मैनेजर्स कमीशन, दैट विल गिव दी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. तो इसमें आपको चीज़ समझ में है, मैंने अपने जो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ समझाया था कि सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है. सो दैट इज रिपीटिंग हियर. So that concept is being applied here. What is happening? This manager's commission is dependent upon the profit after commission, and this profit after commission is calculated using this manager commission. So these two variables are interdependent on each other, and that is where circular referencing comes in. So in any case, let us try using the formula. Apply करके देखते हैं what is going to happen. So I'll use an equal sign to put the formula, then I'll select the profit after commission amount, give a multiply sign and use 2%. Okay, and let us press enter. So जैसे ही मैंने enter press किया, this shows that there are one or more circular references where a formula refers to its own cell either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly, but still you can go ahead. अगर मैं इस OK पर क्लिक करता हूँ, then what it does, so अब Excel ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 0 स्पेसिफाई कर दिया. It is not able to calculate the manager's commission correctly. So what can you do in this scenario? Excel ने इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए
इनको डील करने के लिए एक ऑप्शन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी देख लेते हैं. दैट विल अलाउ अस टू कैलकुलेट दिस मैनेजर कमीशन. सो दैट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द एक्सेल ऑप्शंस मेनू. सो फाइल पर जाएंगे एंड ऑप्शंस पर जाएंगे, एंड यहाँ पर व्हेन यू गो टू फॉर्मूलाज you will see this option here, enable iterative calculation. Okay, so if you click on this one and now click on OK, so what do you see? अब जो सर्कुलर रेफरेंसिंग का एरर था वो हमारे सामने से हट चुका है एंड मैनेजर कमीशन हैज बीन कैलकुलेटेड. ओके, सो ये एक तरीका है जिससे आप सर्कुलर रेफरेंस को अवॉइड कर सकते हैं, but this is not the best way to deal with circular reference. A more appropriate will be to use macros for avoiding this scenario. Let me show you how. तो उसके लिए पहले मैं यहाँ कमीशन को डिलीट कर देता हूँ and let us use this same formula in some another cell. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेल को रेफर कर रहे हैं एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2%. तो और किसी भी सेल पर कैलकुलेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा आपको. अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड अ मैक्रो. सो आप रिकॉर्ड मैक्रो पर आएंगे, इसको एक नाम दीजिए, लेट्स से मैनेजर्स कमीशन. क्लिक ऑन ओके. नाउ सिलेक्ट द सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू कॉपी द डेटा. तो इसको आप कंट्रोल C से कॉपी कीजिए. Go to this cell here, C5. यहाँ पर आपको पेस्ट वैल्यू करना है, तो Alt Control V and choose values and click on OK. And उसके बाद stop recording. Okay, this time हमें relative reference की ज़रूरत नहीं थी because we want absolutely to paste this data on this cell only. हमें C5 सेल का absolute reference चाहिए था, इसीलिए हमने relative reference को यूज़ नहीं किया. Okay. तो चलिए, अब यहाँ पे एक लेकिन प्रॉब्लम है कि पहले ये जो सेल था दैट वाज 6 बिकॉज दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट 300, बट अब हमारा जो अमाउंट है कमीशन का वो चेंज हो गया बिकॉज हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन चेंज हो गया. तो अब मुझे इसका मतलब फिर से इसको पेस्ट करना पड़ेगा. तो फिर से पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार मैक्रो को रन करेंगे. तो मैक्रो पर जाते हैं, यहाँ से मैनेजर्स कमीशन पर जाएंगे एंड इसको रन करेंगे. जैसे हमने रन किया, दिस हैज़ बीन कॉपीड एंड पेस्टेड. फाइन. तो अब अगर आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन चेंज होता है, अगर लेट्स से 350 हो जाता है, तो इन दैट केस आपको फिर से मैक्रो को रन करना पड़ेगा एंड रन करेंगे, सो इट विल वर्क फाइन. वेल, अभी भी यू कैन सी देयर इज माइनर डिफरेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस, 0.02 का डिफरेंस अभी भी आ रहा है. तो आपको ये क्या मैक्रो को रन करते रहना पड़ेगा. सो अगेन आपको एक काम कीजिए, आप फिर से एक शेप इंसर्ट कर लीजिए एंड इस शेप पर आप मैक्रो को असाइन कर दीजिए. तो अब क्या होगा, अब आप इसको जस्ट प्रेस करते जाइए जब तक ये डिफरेंस का अमाउंट आपका 0 नहीं हो जाता. ओके, तो फिर से करके देखते हैं. अगर मैं इसको 400 करता हूँ, अब हमारा डिफरेंस आ गया वापस से -1 का. तो मुझे क्या करना है, जैसे इस मैक्रो को रिपीट करना है. अभी भी डिफरेंस आ रहा है, और एक बार रिपीट कीजिए एंड जब ये डिफरेंस 0 हो जाए यू कैन लिव इट. सो in this way also we can ensure that there is no circular reference whenever we deal with situations like this. Okay, and this method is exactly what we are going to repeat when we prepare a financial model. Okay, so इसको आप अच्छे से practice कर लीजिए and we are done with macros here. So the next topic that we are going to discuss about is solver, which I call the problem solver. Another very useful and powerful tool within Microsoft Excel. So let us see how to use it. Well, first thing that this solver has been provided within Microsoft Excel as an add-in. तो ये आपको directly शायद नहीं मिलेगा. If you go to the data tab, तो यहाँ राइट कॉर्नर पर देखिए, आपको यहाँ solver दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है. अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको पहले फाइल टैब पर जाना है, यहाँ से ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ से एड-इन्स पर आएंगे एंड गो डाउन हियर मैनेज एक्सेल एड-इन्स. तो इसको गो पर क्लिक कीजिए.
व्हेन यू क्लिक ऑन गो यू विल सी दिस ऑप्शन एड-इन्स। तो यहाँ पर सॉल्वर एड-इन का आपका चेक नहीं है, उसको आप चेक कर दीजिए एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। तो अब आपको आपका सॉल्वर जो है यहाँ पर डेटा टैब में मिल जाएगा। ओके ओके, सो नाउ वंस वी हैव दिस सॉल्वर लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। So this is the first problem here. We are given 3 products. So these are the products and we have the corresponding quantity manufactured. This is the current quantity that is being manufactured. Okay. We are given the cost per unit, price per unit, profit per unit and labor hours per unit. You can see the calculation. This is a normal sum here. This is a sum product, that is this multiplied with this and the sum of all that. Okay, so ये sum product formula हमने already सीख लिया है. I hope you already know it. Okay, so this is the data that is we are given with. That is the information we are provided with. Now what are we required to do? We need to maximize the profit by increasing the quantity produced. Now I'll try to rectify this question because this is not appropriate, not by increasing the quantity produced but by producing optimal quantity. Okay, hope you understand the difference, because the profit cannot be increased every time by increasing the products, by increasing the manufacturing quantity of all the products, because for some products the profit margin can be relatively lower, as in case of product B. आप देख रहे हैं product B का profit margin बहुत कम है as compared to product C which is having the highest margin. तो अगर हमें optimal quantity, अगर हमें profits को maximize करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट बी का क्वांटिटी को भी बढ़ाएं, उसको भी और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें. हो सकता है उसको कुछ कम करना पड़े एंड इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़े, बट दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. तो हमें वो भी देखना पड़ेगा. व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम. द फर्स्ट वन इज दैट द प्रोडक्शन हैज़ टू बी इन कंप्लीट यूनिट्स. दैट इज़ ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये डेसिमल प्लेसेस में नहीं होना चाहिए. दैट हैज़ टू बी अ होल नंबर. Okay. Number 2, we are given with the demand for all these products, the minimum demand and the maximum demand. Okay, so these are the minimum and maximum quantities that has to be produced. Okay, so अभी आप देखेंगे जो current quantities है that is 250, 180 and 200. So that is above the minimum quantities of course, but and that is also well below the maximum criteria as well. Okay, but this quantity C is already being manufactured at the maximum possible limit. मतलब जितने डिमांड है उतना हम ऑलरेडी बना रहे हैं. एंड इसका एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन आप सोच सकते हैं, बिकॉज इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ द हाईएस्ट. तो अभी जो मैनेजमेंट है उसने इतना तो उन्होंने भी असेसमेंट कर लिया है कि इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाना बेटर है, राइट. तो इसको सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जितना उसका डिमांड है. एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेबर आवर्स इज रेस्ट्रिक्टेड एट 180 एंड करेंटली द लेबर आवर्स दैट इज बीइंग यूज्ड इज 174. ओके, तो इस क्राइटेरिया को भी हमें ध्यान में रखना है. वेल, आफ्टर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम, इफ यू आर अ CA final candidate or you are a CA pass out, then you can very well relate to this problem, because this problem is also discussed in the costing subject of CA final and within the chapter linear programming. तो ये exactly उसी का जैसा सम है, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें आप सॉल्व करते हैं using the simplex method. तो अब हो सकता है आपकी थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाए यहाँ पर उस चैप्टर की, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा ख़राब भी लगेगा कि क्यों वो हमसे इतनी मेहनत करवाते हैं, इतना दिमाग लगता है उसमें, इतनी मेहनत लगती है. एंड यहाँ पर हम उसी चीज़ को वी विल सॉल्व इट हियर इन लेस देन अ मिनट्स टाइम. ओके, बट लेट अस कंट्रोल आवर इमोशंस एंड
सी हाउ कैन वी सॉल्व इट यूजिंग द सॉल्वर एड इन. ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, हम डेटा पर जाएंगे एंड सॉल्वर पर क्लिक करेंगे. जब हमने सॉल्वर पर क्लिक किया, वी हैव द सॉल्वर पैरामीटर्स हियर. द फर्स्ट थिंग इज सेट द ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन द करंट सिनारियो? In the current case, our objective is to maximize the profit amount. Okay, so set objective में हम क्लिक करेंगे इस सेल पर. This is the total profit that we are making right now and we want to maximize it. Okay, तो यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन भी मिल रहा है, you want to maximize it, minimize it, or is there any specific value that you want to reach out, any specific value that you want to make it up to. So in this case, अभी के लिए हमें इसे मैक्स ही रखना है. वी वांट टू मैक्सिमाइज इट इन वॉट एवर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट आर द सेल्स दैट यू नीड टू चेंज. अब इसके लिए जो सेल्स हम चेंज करेंगे, हमें क्या चेंज करना है, हम सिर्फ प्रोडक्शन क्वांटिटीज को चेंज करेंगे. ओके, एंड नथिंग एल्स. कॉस्ट, प्राइस, ये सब हमारे फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. Okay, so we are not able to change the cost or price elements. We are only able to change the production strategy, the optimal production, the ratio in which these quantities, these products can be produced. Okay, now what are the constraints that this problem is subject to? तो अब हमें constraints को add करना है. तो उसके लिए यहाँ add पर click करेंगे या Alt A प्रेस करेंगे. So okay, now this box appears, add constraint. So what is our first constraint? What is our first constraint? That the production has to be complete units. So इसके लिए हमें क्या करना होगा, this is the production units. This has to be यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, less than equal to, this is equal to, greater than equal to, this is integer, this is binary, and this is different. That is, all values have to be different and no two values should be same. So that is different. तो अभी इस केस में हमें यहाँ पर integer select करना है. ओके, एंड उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए. नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया, द सेकेंड कंस्ट्रेंट, दैट इज द डिमांड. So it should not fall below the minimum and it should not go above the maximum. तो सेल रेफरेंस हमारा यही सेल्स रहेगा. इसको लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, दीज वंस, राइट. ये हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया हो गया. इसको ऐड कर दीजिए एंड अगेन दिस सेल्स दैट नाउ दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम डिमांड. तो ये तो मीट होना ही चाहिए. तो अब हमने इसको भी ऐड कर दिया. सो वी हैव एडेड 3 क्राइटेरियाज. नाउ द फोर्थ वन इज मैक्सिमम लेबर आवर्स. सो इसको आप यहाँ सेल रेफरेंस के लिए क्या लेंगे, दिस टोटल लेबर आवर्स. इसको हमने सेलेक्ट किया एंड दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 180, राइट. सो दिस हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 180. तो हमने ये भी कर लिया. अब आप क्लिक कर दीजिए ओके पर. सभी कंस्ट्रेंट्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. ऑल राइट, लेट अस गो अहेड. Select the solving method. यहाँ पे देखिए we have 3 options and the option that is already selected in my case is simplex LP. So आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड जो है यहाँ पर इन्होंने सॉल्वर में ऑलरेडी फिट करके दे दिया है. सो जो आप वहाँ पे कैलकुलेशंस करते थे, स्लैक कैलकुलेट करते हैं, ऑल दैट स्टफ, तो वो सभी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. एंड आई विल शो यू द रिपोर्ट एज वेल. तो यू विल बी मोर एबल टू रिलेट टू दैट. सो ये तरीका तो आप समझते हैं कि सिंप्लेक्स एलपी क्या होता है, कैसे काम करता है. एंड इन केस यू आर नॉट अ सीए स्टूडेंट देन आई विल बेग योर एक्सक्यूज, बिकॉज वो जो एक दैट इज़ अ होल न्यू डिफरेंट टॉपिक, दैट इज़ अ होल न्यू डिफरेंट सब्जेक्ट. तो उसको हम अब वो प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बिकॉज वो एक सीए फाइनल का पूरा एक चैप्टर है. तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगता है उसको डिस्कस करने में. सो आई विल नॉट बी एबल टू गो इन टू मच डिटेल्स नाउ. द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर इज कि तीनों जो भी यहाँ पे तीन मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से हमें कौन सा कब यूज़ करना चाहिए.
यही हमारे लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ नीचे देखिए इन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दिया हुआ है। सिलेक्टिंग द GRG नॉन लीनियर इंजन फॉर सॉल्वर प्रॉब्लम्स दैट आर स्मूथ नॉन लीनियर। नाउ व्हाट इज स्मूथ एंड व्हाट इज नॉन लीनियर? तो उसके लिए पहले मैं बता दूं कि लीनियर प्रॉब्लम्स क्या है। वी यूज द LP, दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड फॉर लीनियर प्रॉब्लम्स। सो लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या है? इफ यू कंसिडर दिस केस and if you try to solve this with the help of equations, so what do you think, what kind of equations will be able to solve this kind of problem? If you think that the problem will be a linear equation, what is a linear equation? Back to class 4-5 I guess, linear equation का मतलब होता है जिस equation का डिग्री 1 है, जिस equation का जो वेरिएबल है जिसको डिसाइड करना है, द वेरिएबल विच यू नीड टू फाइंड आउट। तो अगर आपका x वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो x का जो मैक्सिमम पावर है, द डिग्री इज 1, देन दैट इज अ लीनियर वेरिएबल, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। एंड ये लीनियर नाम कैसे पढ़ा है? बिकॉज दिस इक्वेशन अगर आप इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो इट विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, सो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। सो अगर आपका प्रॉब्लम एक लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है, then that is a linear problem and that can be solved with the help of LP simplex method, the linear programming simplex method. Okay, and most of the cases में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। तो अब नॉन लीनियर क्या हुआ? अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, या एनी इक्वेशन जिसका पावर, जिसका डिग्री जो है दैट इज मोर देन 1, सो दैट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, एंड so that will be a non-linear problem. Okay, and the third method is evolutionary, that is for non-smooth. तो GRG non-linear और evolutionary में क्या difference है? ये दोनों methods non-linear problems के लिए use होते हैं, and उसमें भी there are two types, एक है smooth, दूसरा है non-smooth. So ये smooth non-smooth क्या है? If you find the differential of the variable and if you can place that on a graph, and if that graph is a smooth line that is without any breaks in between, then that is a smooth non-linear problem. And अगर उस ग्राफ में बीच में गैप्स हैं, then that is a non-smooth non-linear problem. If you are not from a maths background, if you have never read about integration and differential, then you can totally avoid whatever I've been discussing so far. आप ये सभी चीज़ों को इग्नोर कीजिए एंड जस्ट इतना समझ लीजिए कि आप सिंपल प्रॉब्लम्स को सिंप्लेक्स LP से सॉल्व कर सकते हैं. So that is the final conclusion that I want to make. Okay. And that's it. So we are now we can solve the problem. तो अब आपके पास सॉल्व का ऑप्शन है, ऑल टेस्ट प्रेस कर दीजिए. जैसे ही मैंने क्लिक किया यू विल नोटिस दैट हमारे जो वैल्यूज हैं दैट हैज़ बीन चेंज्ड. ओके, सो उसको हम अभी एनालाइज करेंगे. लेट मी कंप्लीट द ऑप्शंस हियर. What we have here, you want to keep the solver solution. So this has already been changed, whether you are happy with or not, or you want to restore the original values. This box is कि whether after clicking this OK या cancel, अगर आप OK करते हैं तो you will accept this solution, and उसके बाद आप वापस से पिछले solver box पर जाना चाहते हैं क्या? The options that we had in the solver dialog box just before this box, just before these options. तो अगर आपको उस पर जाना है तो आप इसको चेक कीजिए, नहीं जाना है तो आप इसको अनचेक कीजिए. एंड आप इसको यहाँ एज अ सिनारियो भी सेव कर सकते हैं, जो हमने सिनारियो मैनेजर में डिस्कस किया था. सो जो आपने कंडीशंस, जो कंस्ट्रेंट्स आपने स्टोर किया है सॉल्वर में, आप उसको चाहें तो सिनारियो मैनेजर पर सेव कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज दिस रिपोर्ट्स हियर. तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को, सॉल्यूशन को सॉल्वर ने क्या किया है उसको हम एज अ रिपोर्ट भी पूरा चेक कर सकते हैं. उसके लिए आप इस आंसर पर क्लिक कीजिए
इस आउटलाइन रिपोर्ट्स को चेक रहने दीजिए. नाउ इन दिस केस आई एम कीपिंग दिस एट रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज. आई एम नॉट कीपिंग द सॉल्वर सॉल्यूशन हियर बिकॉज उसका ये जो सॉल्यूशन है इसको हम इस रिपोर्ट के थ्रू स्टडी करेंगे. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, मेरा जो एक क्वेश्चन जो सॉल्यूशन सॉल्वर ने दिया था, इट हैज़ बीन रिस्टोर्ड बैक टू द ओरिजिनल वैल्यूज. बट डू नॉट वरी अबाउट इट. we have all the answers in this report here in the new sheet. आंसर रिपोर्ट 1. सो यहाँ पर देखेंगे एक्सेल ने, सॉल्वर ने एक बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में आंसर को प्रेजेंट किया है कि कौन सी शीट है, कब रिपोर्ट क्रिएट हुई है. एंड आई विल ब्रिंग योर नोटिस टू दिस पार्ट. व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज. यस, मैक्सिमाइज व्हाट? दिस सेल, दैट इज द प्रॉफिट पर यूनिट, एंड ओरिजिनल वैल्यू वाज 596. एंड एक्सेल सॉल्वर ने जो सॉल्यूशन दिया, that has increased the profit from 596 to 658.6. so that is a very substantial increase. so ये excel ने कैसे किया, solver ने कैसे किया? you have this variable cells here. तो इन cells को इन्होंने, so ये cells grouped हैं, इनको आप ungroup कर लीजिए. and here you can see what changes have excel made. so इसने product A के लिए original value को 250 से increase करके इसने 349 पर लेके गया. क्वांटिटी प्रोडक्ट बी का जो प्रोडक्शन है उसको इसने रिड्यूस कर दिया. एंड प्रोडक्ट सी के केस में देयर वाज नो स्कोप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट. बट प्रोडक्ट बी के केस में वी वेर अर्निंग रिलेटिवली लेस. तो इसमें एक्सेल ने क्या किया, जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड है उसको रिड्यूस कर दिया टू द लोएस्ट पॉइंट पॉसिबल. सो लोएस्ट मिनिमम डिमांड है, वहाँ तक तो हमें मिनिमम प्रोड्यूस करना था, तो 150 इज़ द मिनिमम लिमिट. तो इसने मिनिमम 150 तक इस प्रोडक्शन क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया. ओके. एंड तो उससे जितना भी टाइम स्पेयर हुआ, जितना भी टाइम फ्री हुआ लेबर आवर्स, उसको इसने कहाँ यूटिलाइज कर लिया? फॉर प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी ए. ओके. एंड आप यहाँ नीचे अगर और रेफर करेंगे, वेल इतने डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप एज आई सेड, अगर आप सी ए फाइनल कैंडिडेट हैं तो ये स्लैक वगैरह से आप आई थिंक यू विल बी एबल टू मोर रिलेट टू दिस स्टफ. सो आई थिंक इन दिस केस सॉल्वर हैज़ वर्क वंडरफुली एंड इसने हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बताया जिससे हम हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. सो ये एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. दिस पर्टेन्स टू पोर्टफोलियो एलोकेशन. तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है. वी आर गिवन विद द कंपनी नेम्स. दीज आर सम लिस्टेड कंपनी नेम्स. वी हैव द बीटा गिवन फॉर ऑल दिस कंपनीज एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ऑल दिस कंपनीज. वेल दीज आर ऑल मेड अप फिगर्स. तो आप इसके बेस पे कोई डिसीजन लेने का मत सोचिएगा. दैट इज अ डिस्क्लेमर कि इसके बेस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है. दीज ऑल आर मेड अप फिगर्स. आई हैव put these figures randomly, okay, and by now you already know that how I put random figures in while making these problems. Okay, याद है random between. So इस डेटा पर रिलाई नहीं करना, आपको जिस प्रॉब्लम का इंटेंसिटी को समझना है कि ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिकल सिनारियो में भी फेस करते हैं. तो उसमें आप कैसे डील कर सकते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं सॉल्वर को. तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी वॉन्ट टू मेक अ पोर्टफोलियो एलोकेशन. अभी यहाँ पे 0% दिखा रहा है. वी हैव नॉट मेड एनी इन्वेस्टमेंट सो फार. वी वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. दिस इज नथिंग बट द टोटल. दिस इज गोइंग टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न. आप जो भी एलोकेशन करेंगे उसका प्रोडक्ट विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा है तो यू शुड नो दैट portfolio return and portfolio beta is nothing but the weighted average of the allocation and the respective figures, whether it be beta or whether it be return. So simple weighted average करना है और कुछ नहीं. तो उसको हमने एक्सेल में कैसे किया? using the sum product formula. Okay, so that is simple. So just in case you would like to evaluate it further, so this is what I have done. Okay, so that is simple. अब इसमें करना क्या है?
इसमें हमें करना है पोर्टफोलियो एलोकेशन विच मैक्सिमाइजेस द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर प्रैक्टिकल केस में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह से करूं सो दैट माय पोर्टफोलियो रिटर्न इज मैक्सिमाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट दैट वी हैव? दैट द बीटा शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0.9 to 1.2. Now, if in case you are not from the commerce background, if you have never heard about this beta term, you have never been associated with the stock markets, then it is just a measure of risk. Now, I'm not getting into systematic and unsystematic risk. Broadly speaking, beta is a measure of risk. ठीक है, तो इसीलिए मेरा कंस्ट्रेंट क्या है कि मैं जो बीटा है उसको मैं उस पर मुझे एक चेक रखना है। आई डू नॉट वांट टू इंक्रीज द रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग द रिस्क एज वेल। यस, उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव स्पेसिफाइड दिस रेंज कि बीटा जो है वो 0.9 से लेकर 1.2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हम 1.2 से अगर बीटा को और इंक्रीज करते तो शायद हम हमारे रिटर्न्स को और इंक्रीज कर पाते, बट वी डू नॉट वांट टू टेक मोर रिस्क। ऑल्सो वी डू नॉट वांट टू टेक सो मच लेस रिस्क कि हम सफिशिएंट रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाए, इसीलिए जो मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट करना जरूरी है। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट दिस बीटा रेंज। ओके, एंड द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज दैट द मिनिमम एलोकेशन इन ईच स्टॉक हैज टू बी 5%। एंड ये भी जरूरी है बिकॉज अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगा, राइट? तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्वर यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड गो। ऑलराइट, सो टाइम फॉर द सॉल्यूशन नाउ। लेट अस गो टू सॉल्वर। व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस केस में? दैट वी वांट टू मैक्सिमाइज द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। ओके, सो सेट ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी दिस सेल एंड इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। फाइन। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। कौन से सेल्स को आप चेंज करना चाहते हैं इन दिस केस? अब इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसको सॉल्वर चेंज करे, उसके जगह पर कुछ वैल्यूज हमें पुट करके दे। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दीज वैल्यूज, इनको हमें चेंज करना है। डन। क्या कंडीशंस है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, तो उसको ऐड करेंगे। नंबर 1 कंस्ट्रेंट इज बीटा शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0.9 to 1.2। ओके, सो यहां लिंक करेंगे इस सेल को। पोर्टफोलियो बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.2, राइट? सो लेस देन इक्वल टू 1.2 एंड इस कंडीशन को करेंगे ऐड। नेक्स्ट कंडीशन इज अगेन पोर्टफोलियो बीटा पर ही एक और कंडीशन लगेगा, दैट इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। यस, हम ना तो इससे नीचे जाना चाहते हैं ना ही 1.2 से ऊपर जाना चाहते हैं। ओके, ऐड। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? दैट मिनिमम एलोकेशन इन ईच स्टॉक इज 5%। सो इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कीजिए एंड दैट दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5%। डन। इसको भी ऐड कर लीजिए। चलिए, यहां तक तो आपने भी कर लिया होगा, बट यूजुअली एक कंडीशन जो मिस कर जाते हैं सभी, दैट इज कि ये जो टोटल वाला सेल है दिस हैज टू बी 100%, राइट? नहीं, अगर 100% नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा पैसा है वो एलोकेट ही नहीं होगा। हो सकता है 80-90% में ही ये आंसर निकल जाए, राइट? सो इसके लिए आपको यहां सेट करना पड़ेगा दैट इट हैज टू बी इक्वल टू 100%। ओके, सो अब इसको ओके कर लीजिए। सभी कंडीशन सेट हैं। नाउ वी कैन गो टू क्लिकिंग ऑन सॉल्व। सो जब हम सॉल्व पर क्लिक कर रहे हैं, व्हाट डू वी हैव? इसको ओके कर दीजिए एंड क्लोज। सो व्हाट डू वी हैव कि ये जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है मैक्सिमम कौन से स्टॉक पर किया गया है? इट हैज बीन डन मैक्सिमम ऑन दी मारुति स्टॉक, जिस बिकॉज इसमें रिटर्न जो है सबसे ज्यादा है, दैट इज 15%, हाईएस्ट इन दीज ऑल दिस स्टॉक्स। ओके, सो ऑलमोस्ट 50% का इन्वेस्टमेंट एलोकेशन इस पर किया गया है। नेक्स्ट हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन डन ऑन Infosys, which is the next highest stock, giving the next highest return. Okay,
सो इन दोनों पर मिलाकर हमारा ऑलमोस्ट 75% स्टॉक एलोकेशन हुआ है। एंड उसके बाद जो भी बाकी स्टॉक्स बच गए उनमें जो मिनिमम क्राइटेरिया हमने स्पेसिफाई किया था सिर्फ उतना एलोकेशन ही किया गया है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलोकेशन हमारा जो पोर्टफोलियो रिटर्न निकल कर आता है दैट इज 13.62%। एंड हमारा पोर्टफोलियो बीटा जो है दैट इज ऑल्सो ऑन द मैक्सिमम साइड, दैट इज 1.20। ओके, आप यही चीज आप कुछ और एलोकेशन करके देख सकते हैं। अगर लेट्स से हम इस एलोकेशन को चेंज करते हैं, अगर मैं इसको 10 कर दूं एंड तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 20.25 करना पड़ेगा, राइट। चलिए मैं यहीं पे ±5% कर देता हूं। मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे 5% बढ़ा दिया और मैं यहाँ पे 5% कम कर दूं, सो उसका इम्पैक्ट क्या मिल रहा है कि मेरा जो रिटर्न है वो 13.62 से कम होकर 13.37 पर आ गया। इसका मतलब आप वेरियस एलोकेशंस आप और भी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, बट सॉल्वर के अकॉर्डिंग जो एलोकेशन सॉल्वर ने हमें करके दिया है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको इस रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। एंड द मैक्सिमम रिटर्न दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस दीज स्टॉक्स इज 13.62%। ओके, सो सॉल्वर ने अपना काम कर लिया एंड आई थिंक दिस इज कैन बी अ वन वे जिससे आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन सोच सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ऑलवेज फुल प्रूफ। आपको इस पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है, आप इसको और वेरिएशंस आप चेकआउट कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं इफ देयर इज सम बेटर सॉल्यूशन। एंड आई गेस दैट्स ऑल, वी आर डन विद द सॉल्वर फीचर नाउ। ओके।